بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں مزید نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ ان باتوں کو تکرار کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے مملکت پاکستان کی عدلیہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کے عدل و انصاف پر سوالات اٹھ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور جہاں ہم دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ مستحکم ہو، اس کے فیصلے بولے، ان کے فیصلوں میں تضاد نہ ہو، ان کے فیصلوں میں جانبداری کا کوئی تاثر نہ ہو، وہاں ہمیں ایک مایوسی کا ماحول ملتا ہے اپنے اداروں کے کردار کے حوالے سے۔ ہم ایک اور مستحکم اسٹیبلشمنٹ کے خواہاں رہتے ہیں، ریاست کی حفاظت، ریاست کی بقا، اسی میں ہماری بقا ہے، لیکن ہماری یہ خواہش محض خواہش رہ جاتی ہے۔ اور جہاں پاکستان کا عوام فیصلہ کرتا ہے، جہاں پاکستان کا عوام حکومت بناتی ہے، کسی کو حکومت کرنے کے لیے مینڈیٹ دیتی ہے، وہاں حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت مجرم نہیں، اداروں کی نظر میں پاکستان کا عوام مجرم ہے۔ اور پھر جب اداروں کی مرضی کے مطابق کوئی حکومت نہیں آتی اور ادارے کی خواہشات کو حکومت پوری نہیں کرتی، تو پھر دھاندلیاں کر کے ایک سلیکٹڈ حکومت قوم پر مسلط کر دی جاتی ہے، تو پھر ملک کا یہ انجام ہوگا۔ ہمارے ادارے ریاست کی بقا کے لیے میدان میں آتے ہیں، جو ان کا فرض ہے، لیکن کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ ریاست آپ کی مداخلت سے کمزور ہوئی ہے، سیاستدانوں کے طرز عمل سے نہیں؟ آپ تو ایک دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہاں آپ جو چاہیں فیصلے کریں، جو چاہیں آپ میڈیا میں اپنی رائے کو فلوٹ کریں اور سیاستدان کو بدنام کرتے رہیں اور قوم کے سامنے اس کو مجرم بناتے رہیں، لیکن آج جو ہم بھگت رہے ہیں اور جہاں ہم کھڑے ہیں، ہر ایک میں اگر ہمت ہے، اخلاقی ہمت ہے، تو اپنی خود احتسابی خود بھی کر لیں۔ خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ طاقتور طاقت دکھاتا ہے اور طاقت کی وجہ سے وہ ہمیشہ حق پر ہوتا ہے، حالانکہ ریاست اس کے تمام جرائم کی اور طاقت کے غلط استعمال کی اور ادارے کے غلط استعمال کی سزا بھگت رہی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کے یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ ایک ہی ایشو کے اوپر ہے کہ اس بینچ سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نظر نہیں آ رہی۔ ہم عدالت سے فیصلے کا حق نہیں چھین رہے، ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ وہ کیس کو سنے۔ اجتماعی جتنے زیادہ اس میں اجتماعیت ہوگی، اتنا ہی کچھ امید ہمیں لگ جائے گی کہ ہاں فیصلہ جو ہے میرٹ پہ ہوگا، ورنہ پھر یہ بینچ تو پہلے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو یا تو ان کو
रद्द करेगी, उसमें तजाद होगा, उसमें तसादुम होगा, या उसी तरह का फैसला करेगी। तो जो भी इस वक्त गुफ्तगू की है मुहतरमा ने, हम उनको सपोर्ट करते हैं और ये हमारी एक मुत्तफ़क़ा राय है। इस हवाले से जो उन्होंने हवाले दिए हैं, जो माजी बयान की है, वो मैं समझता हूँ कि कौम के लिए एक अच्छा मवाद है, आपके लिए भी एक अच्छा मवाद है, और उसी को बुनियाद बनाकर हमने अब मज़ीद आगे बढ़ना है। और इस मुल्क को अवाम ने, अवाम के नुमाइंदों ने और सियासतदानों ने तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आखिर हद तक जाना है। खुदा के लिए आज कौम को इस हद तक न पहुँचाए कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत करने में उतर आए। जब लोग कहने लगे कि हम इस रियासत के साथ क्यों वाबस्ता हैं, हमें अपने मुल्क में अपने आप को अजनबी क्यों महसूस किया जा रहा है, हम क्यों अपने मुल्क के अंदर अजनबी लग रहे हैं, जैसे पता नहीं कहीं बाहर से आए हुए हों और हम इस मुल्क में रह रहे हों। हम इस मुल्क के शहरी हैं और ठीक ठाक छचे तुले शहरी हैं। इस मुल्क से हमारी वफादारी है, और कोई बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े इदारे और ताकतवर से ताकतवर इदारे का कोई भी बड़ा अगर मुल्क से वफादारी की बात करता है तो बखुदा मैं उसकी निस्बत अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वफादार समझता हूँ, और पाकिस्तान पर कोई कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम भी एक इदारा है, पब्लिक भी एक इदारा है, पार्लियामेंट भी एक इदारा है, अवाम भी एक इदारा है, और उसको ताकतवर बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को बहाल करना है। लेकिन जहां हम उन पर एतमाद बहाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वहां उनको भी अपने किरदार को जांचना होगा, और अगर कोई कमजोरी उनके अंदर है तो वो खुद एहतसाबी में उसकी खुद इस्लाह करें। इंशाअल्लाह मुल्क भी रहेगा, इदारे भी रहेंगे, एतमाद भी रहेगा, एहतराम भी रहेगा, और उसी की पादाश पे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी इकॉनमी ठीक होगी। इस इज़्तिराब और गोमगो की पोजीशन में गुज़श्ता 3.5 पौने 4 सालों में भी हमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और अब मज़ीद हम इज़्तिराब पैदा करके पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तारीख कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क के मुस्तक़बिल को रोशन बनाना है, और उसके लिए हुकूमती इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमत भी ये फैसला कर चुकी है। हर चंद के हम बहुत से हालात से गुजरे, हमने मौक़िफ़ भी अपनाए, इख्तिलाफ राय भी किए, लेकिन आज हम इस जगह पे खड़े हैं इत्तिफाक़ राय के साथ कि हमें मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है। लेकिन ठीक करने तो दिया जाए, उसके लिए जो आपने अपने पूरी तवानाइयाँ, पूरी सलाहियतें मरकूज़ करनी हैं मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने पर, उसके लिए छोड़े तो सही। इस कैफियत में कैसे हम इस्लाह करेंगे? कभी अदालत हमारी खींचातानी कर रहा है, कभी कोई और कर रहा है, कभी इधर से मुश्किल पैदा हो रही है, कभी उधर से मुश्किल पैदा हो रही है। तो मुश्किल पैदा करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो हर एक आदमी दूसरे के लिए पैदा कर सकता है, लेकिन मुझसे अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपके लिए कोई मुश्किल न पैदा करूं, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए कोई मुश्किल न पैदा करें, और हम एक दूसरे को सपोर्ट दें। अगर पार्लियामेंट को सपोर्ट होगी, हुकूमत को सपोर्ट होगी, और हमारी तरफ से इदारों को सपोर्ट होगी, तो मुल्क मुस्तहकम होगा, और यही हम चाहते हैं। और मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं उन मोहतरमा के बयान को इंडोर्स करूँगा, और उनकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारे दरमियान एक मुत्तफ़क़ा गुफ्तगू है, और बड़े अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने हवाले देकर अपने मौक़िफ़ को आपके सामने रखा है। अल्लाह करे कि हमारा ये मुल्क मुस्तहकम हो और हमारी अदलिया पर लोगों का एतमाद बहाल हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे इत्तेहादी